Hello, good afternoon all students. Myself डॉक्टर अंकिता रामी, पीएचडी कोर्स वर्क में आप सभी का स्वागत है। यूनिट 5 CW 101 डेटा इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। नेक्स्ट सैटरडे हमने कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन रिपोर्ट राइटिंग की बात की थी। आज हम रिपोर्ट राइटिंग के टाइप्स देखेंगे। रिपोर्ट राइटिंग एक कंपेरेसिव गाइड. Report writing is a curricular skill for professionals in diverse fields. It involves presenting information in a clear, concise, and persuasive manner to inform, analyze, and recommend actions. An effective report not only communicates data accurately but also engages the reader and leaves a lasting impact. This guide delves into the essential aspects for report writing, covering style, layout, and common weakness. रिपोर्ट राइटिंग एक व्यापक मार्गदर्शिका ऐसा उसका मीनिंग है। रिपोर्ट राइटिंग के अंदर लेखन जो विविध क्षेत्र में पेशेवरों के लिए महत्वपूर्ण होता है, इसके अंदर जो सूचना होती है वो स्पष्ट, संक्षिप्त और प्रेरक तरीके से प्रस्तुत की गई होती है। उसके अंदर विश्लेषण करना होता है, कार्रवाई की सिफारिश करनी होती है। एक प्रभावशाली रिपोर्ट न केवल डेटा को सटीक रूप से लिखता है, पर जो पाठक है, जो रीड करता है, उससे भी वह आकर्षित करता है और एक स्थायी प्रभाव छोड़ देता है। यह मार्गदर्शिका रिपोर्ट लेखक के आवश्यक पहलुओं को कवरिंग शैली, लेआउट और सामान्य कमजोरी पर गहराई से चर्चा करता है। फिर आता है स्टाइल क्लियरिटी एंड कंसाइनेस, एक्टिव वॉइस, प्रिसाइज लैंग्वेज, ऑब्जेक्टिविटी, फॉर्मल टोन्स। Using the active voice make your writing more direct and engaging. For example, instead of saying the report was written by the team, write the team wrote the report. Precise language, avoid jargon and technical terms unless your audience is familiar with them. Use clear and concise language that is easy to understand. For example, instead of saying utilize, say use. Objectivity. Report should be objective and unbiased. Avoid opinions and emotional language. Focus on presenting facts and evidence to support your claims. Formal tone. Maintain a formal tone throughout the report. Avoid contractions, colloquialism, and slang. Use proper grammar and punctuation. रिपोर्ट के अंदर जो स्टाइल है उसके अंदर क्लियरिटी होनी चाहिए। जैसे कि आप कुछ लिख रहे हो तो आपकी लेखन शैली ज़्यादा सरल और आकर्षक लगनी चाहिए। एग्जाम्पल, रिपोर्ट टीम द्वारा लिखा हुआ था, उसकी जगह हम ऐसा लिखें कि टीम ने रिपोर्ट लिखा, तो वो जो है वो सरल और साहजिक भाषा है, साहजिक वाक्य है। फिर आता है जो आपके श्रोता टेक्निकल शब्दों के साथ परिचित नहीं है, ऐसे कोई शब्द को आपको यूज नहीं करना चाहिए। आपकी भाषा जो है वो स्पष्ट और सरल होनी चाहिए। फिर आता है ऑब्जेक्टिविटी। रिपोर्ट्स के अंदर निष्पक्ष और वास्तविकता दिखनी चाहिए। आपका अंगत मंतव्य या भावनात्मक भाषा का उपयोग उसके अंदर नहीं होना चाहिए। जो तथ्य है, जो सच्चा है, उसको ही आपको लिखना चाहिए और उसके ऊपर ही आपका ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फिर आता है अनौपचारिक स्टैंडर्ड यानी फॉर्मल टोन्स। रिपोर्ट के अंदर नम्र और औपचारिक टोन रखना चाहिए। संक्षिप्त रूप, आंगलिक भाषा, मुहावरा का प्रयोग उसके अंदर नहीं होना चाहिए। योग्य व्याकरण और विराम चिन्हों का उपयोग उसके अंदर होना चाहिए। फिर आता है लेआउट, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, एग्जीक्यूटिव समरी, बॉडी,
recommendations, appendices, introductions, conclusion, and references. A brief overview of the report's key findings, conclusion, and recommendations. It should be concise and right for a broad audience. Body. Present the main contents of the report, divide into logical sections with clear headings and subheadings. It includes data, analysis, and supporting evidence. फिर आता है recommendations. Offer specific and actionable suggestions based on the report's findings. They should be clear, concise, and feasible. फिर आता है appendices. Contains supplemental information that is not initial for the main body of the report, such as raw data, de- detailed calculations, or supporting documents. फिर आता है introductions. Provides background information, define the scope of the report, and state the purpose and objectives. Conclusion. Summarizes the key findings and restates the report's purpose and objectives. It should be clear and concise. References. List all sources used in the report following a specific citation style. फिर आता है कि रिपोर्ट के अंदर मुख्य निष्कर्ष होना चाहिए, निष्कर्ष और सिफारिशों का संक्षिप्त अवलोकन होना चाहिए या उसका संक्षिप्त आपको वर्णन करना चाहिए। व्यापक की दृष्टि से दर्शकों को वो ज्यादा आपका जो कंटेंट है उसके अंदर ज़्यादा जल्दी से समझ सके, ऐसा आपके कंटेंट का संक्षिप्त और निष्कर्ष होना चाहिए। फिर आता है रिपोर्ट की जो मुख्य सामग्री है वो स्पष्ट शीर्षक करना होना चाहिए और उपशीर्षकों का भी साथ तार्किक खंडनों में विभाजित उसके अंदर करना चाहिए। उसके अंदर डेटा और विश्लेषण और सहायक साक्ष्य भी शामिल होना चाहिए। फिर आता है रिकमेंडेशन। रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर विशिष्ट और कार्यान्वयन योग्य सुझाव से प्रस्तुत होना चाहिए। ये स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए और व्यवहार्य ज्ञान भी उसके अंदर होना चाहिए। फिर आता है अपेंडिसेस यानी परिशिष्ट। इसके अंदर ऐसी पूरक जानकारी शामिल होनी चाहिए जो रिपोर्ट के मुख्य भाग के लिए आवश्यक नहीं होती है, जैसे कि कच्चा डेटा, विस्तृत गणना और सहायक दस्तावेज। ऐसी जो बाबत आती है वो परिशिष्ट के अंदर आती है। फिर आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर यानी परिचय, पृष्ठभूमि जानकारी उसके अंदर प्रदान होनी चाहिए। रिपोर्ट का दायरा उसके अंदर परिभाषित होना चाहिए और उसका उद्देश्य और लक्ष्य ये परिचय के अंदर सिद्ध होना चाहिए। फिर आता है कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। मुख्य निष्कर्षों का सारांश प्रस्तुत करना चाहिए। रिपोर्ट के उद्देश्य और लक्ष्य को यहाँ पे पुनः बताना होता है और यह स्पष्ट और संक्षिप्त भी होना चाहिए। फिर आता है रेफरेंसेस यानी संदर्भ। आपके थीसिस के अंदर जो आपने बुक प्रिफर की है वो रेफरेंस के अंदर आता है। वो अल्फाबेटिक के अनुसार आपको रिपोर्ट में प्रयुक्त एक विशिष्ट उद्धरण शैली में उसको आपको सूचीबद्ध करना होता है। फिर विजुअल एड्स इनहेजिंग क्लियरिटी एंड इम्पैक्ट। टेबल, ग्राफ्स, images and diagrams. Tables organize and present numerical data in a structured format for easy comparison and analysis. Graphs visualize trends, relationships, and patterns in data. Use bar graphs, line graphs, pie chart, or scatter plots depending on the data type and messages. Images illustrate concept, provide visual evidence, or enhance engagement. Choose high quality images that are relevant to the report's content. फिर आता है डायग्राम्स। सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और सिस्टम्स। यूज फ्लो चार्ट्स, प्रोसेस डायग्राम्स और ऑर्गेनाइजेस चार्ट टू इलिस्ट्रेट रिलेशनशिप एंड सीक्वेंसेस। टेबल के अंदर आपने जो टेबल आसान तुलना और विश्लेषण के लिए संख्यात्मक डेटा को संरचित प्रारूप में व्यवस्थित
रूप से प्रस्तुत करना होता है। रेखांकन यानी ग्राफ्स डेटा के अंदर आपको वो डेटा प्रकार और संदेश के आधार पर ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट और स्कैटर प्लॉट का आपको उपयोग करना चाहिए। फिर आता है इमेजेस, तो अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे ये इमेजेस को साक्ष्य प्रदान और इमेजेस का जो दृश्य है वो आप रख सकते हो। यह आपको यहाँ पे सहभागी बनता है। उच्च गुणवत्ता वाले छवियां आपको चुननी चाहिए जो रिपोर्ट की सामग्री को प्रासंगिक रूप से आपको वो इमेज लेनी चाहिए। फिर आता है डायग्राम यानी चित्र। जटिल प्रक्रिया और प्रणालियों को आपको सरल ये डायग्राम बनाते हैं। संबंध और अनुक्रमों को दर्शाने के लिए फ्लो चार्ट, प्रक्रिया आरेख या संगठनात्मक चार्ट का उपयोग आप कर सकते हैं। फिर आता है कॉमन वीकनेस इन रिपोर्ट राइटिंग, लैक ऑफ क्लियरिटी, पुअर ऑर्गेनाइजेशन, lack of clarity, poor organization, insufficient evidence। जैसे कि स्पष्टता का अभाव, आपका जो थीसिस है उसके अंदर आपकी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। शब्द जाल, अस्पष्ट भाषा या स्पष्ट वाक्यांशों का प्रयोग रिपोर्ट को समझने के लिए कठिन बना सकते हैं। इसलिए आपकी भाषा सुनिश्चित, संक्षिप्त और सीधी सरल होनी चाहिए। पुअर ऑर्गेनाइजेशन यानी खराब संगठन, अव्यवस्थित रिपोर्ट पाठक के लिए निराशाजनक हो सकती है। इसके लिए आपको वो पाठक को जानकारी को माध्यम से मार्गदर्शन करने के लिए शीर्षक और उपशीर्षक और दृश्य सहायता का भी आप उसके अंदर प्रयोग कर सकते हैं। फिर आता है अपर्याप्त साक्ष्य। आपका जो कंटेंट है, आपका जो रिपोर्ट है, वो दावों को मजबूत करे, सबूतों से समर्थित होना चाहिए, चाहे वह डेटा हो या शोध हो। आपको कोई विशेषज्ञ की राय लेनी चाहिए और उसका समर्थन वाला बयान हो, तभी आप कुछ एविडेंस रख सकते हो। फिर आता है टिप्स फॉर इफेक्टिव रिपोर्ट राइटिंग। नो योर audiences, research thoroughly, outline your report, write concisely, proofed carefully। आपका जो कंसिडर द रीडर्स बैकग्राउंड नॉलेज एंड इंटरेस्ट व्हेन चूजिंग लैंग्वेज एंड प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन। रिसर्च throughoutly, gather accurate and relevant information from reliable sources to support your claims, outline your report, create a structure outline to organize your thoughts and ensure a logical flow of information, write concisely, avoid unnecessary word and perhaps get to the point quickly and efficiently। Proofed carefully. Check for grammar errors, typos, and inconsistencies inconsistencies before submitting your report। अपने दर्शकों को जाने, जैसे कि भाषा का चयन करते समय उन्होंने जो जानकारी प्रस्तुत की है वो समय पाठकों की पृष्ठभूमि, ज्ञान और रुचियों का विचार करे। ऐसी आपकी रिसर्च या थीसिस आपका होना चाहिए। फिर आपके रिसर्च के अंदर गहनता का शोध किया हुआ चाहिए, जैसे कि अपने दावों के समर्थन के लिए विश्वसनीय हो और आपका जो स्तोत्र है वो सटीक और प्रासंगिक जानकारी आपने सही एकत्र की है वो आप उसके अंदर दिखना चाहिए। फिर आता है आपकी जो रिपोर्ट है वो रूपरेखा तैयार की होती है।
जैसे कि अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए और सूचना के तार्किक प्रवाहों को सुनिश्चित करने के लिए संरचित रूपरेखा बनाई होनी चाहिए। फिर होता है संक्षिप्त लिखे, तो अनावश्यक शब्दों को आपको टालना चाहिए और मुद्देसर जो शब्द होते हैं उसको ही कुशलतापूर्वक आपको लिखना चाहिए। फिर आता है प्रूफ्ड केयरफुली। आपने जो रिपोर्ट तैयार की है वो व्याकरण संबंधी जो त्रुटियां है उसको आपको एक बार प्रूफ करके रीड करके जो त्रुटि है उसको आपको सुधारना चाहिए और असंगतियों की आपको जांच करनी चाहिए। फिर आता है टूल्स एंड रिसोर्स, ग्राफ चेकर्स, क्रिएशन जनरेटर्स, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एंड क्लाउड स्टोरेज। आपका जो ग्रामर चेकर है उसके अंदर व्याकरण परीक्षक, उसके अंदर आपको चेक करना चाहिए कि कौन कौन सी आपकी ग्रामर की मिस्टेक है। जो मिस्टेक है उसको आपको सुधार देना चाहिए। फिर आता है उद्धरण जनरेट, विशिष्ट उद्धरण शैली जैसे कि एपीए, एमएलए, शिकागो के अनुसार संदर्भ और ग्रंथ सूची को प्रारूपित करने के लिए उद्धरण जनरेटर का उपयोग आपको करना चाहिए। फिर आता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो आपने जो आपका रिपोर्ट तैयार किया है वो रिपोर्ट अच्छी तरीके से आप बता सकते हो या दिखा सकते हो। इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, गूगल स्लाइड्स या प्रेजी जेब सॉफ्टवेयर की मदद से आकर्षक प्रस्तुति करके आप अपना रिसर्च बना सकते हो। फिर आता है क्लाउड स्टोरेज। तो गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स या वन ड्राइव जैसी सेवा का उपयोग करके अपनी रिपोर्ट को सहायक दस्तावेजों को क्लाउड में सुरक्षित रूप से आप संग्रहित कर सकते हो। फिर आता है टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, इंफॉर्मेटिव, एनालिटिकल, persuasive and proposal. Presents functional information about a topic or event. Analytical examines data and trends to draw conclusion and provide insights. Persuasive advocates for a specific viewpoint of course of action. Proposal outline a plan or project including objectives, method and budget. इंफॉर्मेटिव यानी जानकारी, किसी विषय या घटना के बारे में आपको जानना है तो वो जानकारी तथ्यात्मक जानकारी आपको प्रस्तुत करनी होती है। फिर एनालिटिकल यानी विश्लेषणात्मक, निष्कर्ष निकालने के लिए और अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए ये डेटा आपको काम में आता है। ये डेटा आपको जो कंक्लूजन एंड प्रोवाइड्स इंसाइट आपको जांच करने में मदद मिलती है। फिर आता है प्रिस्यूसिव, प्रेरक, किसी विशिष्ट दृष्टिकोण से या कार्यवाही का आप इसके अंदर समर्थन कर सकते हो। फिर आता है प्रपोजल यानी प्रस्ताव, किसी योजना या परियोजना की रूपरेखा जिसके अंदर कोई उद्देश्य है, कोई विधि है, कोई बजट है, कोई डेटा है, तो उसको आप ये प्रपोजल के अंदर शामिल कर सकते हो। फिर लास्ट आप हमारा आता है कंक्लूजन। रिपोर्ट राइटिंग इज ए वैल्यूएबल स्किल दैट कैन enhance your communication and professional effectiveness by mastering the principle of style, layout, and visual aids. You can create reports that are clear, concise, and impactful. Remember to focus on your audience, research thoroughly, and proofread carefully to ensure accuracy accuracy and professionalism with practice and attention to detail. You can develop your report writing skill and efficiently communicate your ideas to your टारगेट ऑडियंसेस। कंक्लूजन लास्ट में जो हमारा रहता है वो निष्कर्ष कैसा होना चाहिए, तो रिपोर्ट के अंदर लेखन जो एक है वो एक मूल्यवान कौशल्य है जो आपके संचार और आपका जो पेशेवर प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है। आपका निष्कर्ष ऐसा होना चाहिए कि आपकी शैली सरल हो, लेआउट और दृश्य सहायता के सिद्धांत में महारत
हासिल करके आप ऐसी रिपोर्ट बना सकते हो जो स्पष्ट हो, संक्षिप्त हो, प्रभावशाली हो। सटीकता और व्यावसायिकता सुनिश्चित करने के लिए अपने दर्शक पर आप ध्यान केंद्रित करना, गहन शोध करना और सावधानी पूर्वक प्रूफ रीडिंग करना, आपको ये तीन बातों को याद रखना होता है। अभ्यास और विवरण पर ध्यान देने के साथ आपको अपने रिपोर्ट लेखन को कौशल को विकसित कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी आपको विचार करना होता है। और आपने अपना जो लक्षित दर्शकों तक कैसे आपका जो रिसर्च है, आपका थीसिस है, वो आप जो पाठक जो होते हैं, जो दर्शक होते हैं, उसको कैसे उपयोगी आपका थीसिस बन सकता है और कैसे वो आपका थीसिस देख के प्रभावी बन सकते हैं, ऐसा आपका रिसर्च के अंदर निष्कर्ष संप्रेषित करना चाहिए। तो ये रहा हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन और रिपोर्ट राइटिंग की बात। यहाँ हमारा ये लास्ट जो टॉपिक था, यूनिट 5, ये हमारा आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। आशा रखती हूँ कि आप सभी को मज़ा आया होगा और आप सभी रिपोर्ट राइटिंग और इंटरप्रिटेशन के बारे में काफ़ी कुछ सीख गए होंगे। थैंक यू सो मच।